संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी हरिवंश को ध्वनि मत से चुन लिया गया। दूसरी बार उपसभापति नवनिर्वाचित होने के अवसर पर सभी सांसदों और प्रधानमंत्री ने हरिवंश को बधाई दी। हरिवंश सिंह के सामने विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा को अपना उम्मीदवार बनाया था। आइए देखते हैं राज्यसभा में उपसभापति को बधाई पर चर्चा का सारांश। Now, honorable members, motion for election of the deputy chairman. There are 5 motions for the election of the deputy chairman. As per the procedure, members who have given notice may now move them one by one, and each case the motion is also to be seconded by the seconder thereof. Sri Jagat Prakash Nadda to move the motion. सभापति जी, मैं जगत प्रकाश नड्डा आपकी अनुमति से ये प्रस्ताव करता हूं कि श्री हरिवंश जी को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। Sri Tawarchand Gehlot to second the motion. सभापति महोदय, मैं हरिवंश जी के नाम का जो प्रस्ताव डॉक्टर जगत प्रकाश जी नड्डा साहब ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूँ। Sri Ramvilas Paswan to move the motion. He is not there. So he has sought my permission also. Sri Naresh Gujral. So when he has not moved, then Gujarati cannot second it also. The motion. Then Sri Ghulam Nabi Azad to move the motion. Chairman sir, I move the following motion that Professor Manoj Kumar Jha be chosen as Deputy Chairman of the Rajya Sabha. Sri Anand Sharma to second the motion. सभापति महोदय, मैं अभी ये जो प्रस्ताव श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने पेश किया है श्री मनोज झा जी के नाम का, उसका समर्थन करता हूँ। Sri Tiruchi Siva to move the motion. Sir, I, Tiruchi Siva, move the following motion, sir. That Professor Manoj Kumar Jha be chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. Sri Ahmad Patel to second the Sri Javed Ali Khan. गैदर में राज्यसभा का उपसभापति बनाए जाने के लिए प्रस्ताव करता हूं। तो श्री जयराम रमेश. Second the motion moved by Shri Javed Ali Khan. Honorable members, before I put, as there are more than 2 names, I put the motion moved to vote. I may like to inform the House that the motions moved will now be taken up for adoption in the same sequence in which they have been moved. And at any stage, if a motion is carried, the remaining motion will become infructuous and will not be put to the vote of the House. That's the procedure. I shall now put the motion moved by Sri Jagat Prakash Nadda and duly seconded by Sri Tawarchand Gehlot to vote. The question is, Sri Harivansh be chosen as the Deputy Chairman of Rajya Sabha. Those in favor will please raise their hands and say aye. Aye. Those against will raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted. Thank you. Though 2 good candidates' names have been proposed, but 1 good candidate only can be elected. So I declare that Sri Harivansh ji has been chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. Harivansh ji can be please escorted to his seat here, one from this side and one from the other side. आराम से आराम। हाँ, टच नहीं करना मगर एस्कॉर्ट करना। क्या क्या भाई? उपसभापति को बधाई पर चर्चा पर जारी है संसद संवाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को ध्वनिमत से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। सत्तारूढ़ और विपक्ष के प्रस्तावों के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने ध्वनिमत के आधार पर हरिवंश को निर्वाचित करने की घोषणा की। सत्तारूढ़ एनडीए की तरफ से बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने हरिवंश के समर्थन में प्रस्ताव रखा, जबकि प्रोफेसर मनोज कुमार झा का नाम राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने प्रस्तावित किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने उपसभापति को बधाई दी और नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं राज्यसभा में उपसभापति को बधाई पर चर्चा का सारांश। Leader of the opposition, Ajay ji. Honorable Chairman sir, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्री हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं डिप्टी चेयरमैन बनने पर। ये दूसरी दफा डिप्टी चेयरमैन इस सदन के बने और पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि बहुत कम समय में इस पद पर रहकर सभी दलों के जो प्रतिनिधि इस सदन में हैं उनके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया है। वो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, लेखक हैं और इस फील्ड से जो आते हैं उनके लिए सभी बराबर होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी तीनों तरफ ध्यान देंगे, दाएं बाएं और सेंटर। आमतौर पे विपक्ष को ये बड़ी शिकायत रहती है, कोई भी विपक्ष हो, कि उनकी तरफ से कम ध्यान दिया जाता है। और मैं यहां बताना चाहता हूं कि आमतौर से राइट की तरफ और सेंटर की तरफ ज्यादा नजर जाती है, लेफ्ट की तरफ कम जाती है। हालांकि लेफ्ट वाले हम लेफ्टिस्ट तो सेंटर में हैं, ले हम लेफ्ट ऑफ सेंटर जो है उसकी तरफ भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये ऐसा सदन है कि जहां हम देश के हित में सब मिलके काम करते हैं और जिसमें माननीय चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो या कोई भी चेयरपर्सन हो, उसका हमेशा प्रयास रहता है कि सभी लोगों को अवसर मिले, बड़े ग्रुप को, सरकार को भी, विपक्ष को भी, छोटे से छोटे दल के नेताओं को भी, और जो नॉमिनेटेड हैं या एक एक आदमी है, क्योंकि यहां हम सब बराबर हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बराबर है। तो मैं आज इनको बधाई देते हुए अपनी तरफ से और अपनी दल की तरफ से और यही अपेक्षा करता हूं कि माननीय डिप्टी चेयरमैन सर पूरी तरह से सक्षम है इस सदन की कार्रवाई को चलाने के लिए जब माननीय चेयरमैन नहीं होंगे कुर्सी पर, और सभी के साथ बराबर का इंसाफ करें। एक दफा फिर आपको बहुत बहुत बधाई। On behalf of my party and everyone else here, congratulations and a very warm welcome. आज तो हिंदी दिवस है और आज शुभ दिन है। आप एक महान पत्रकार भी है, so this is a good day. You have got elected, re-elected to this as the deputy chairman. Harivansh ji and I have a long history of being neighbors, because today also he is sitting in a temporary seat, I am sitting in a temporary seat. Again we are neighbors. He comes from Bihar, I come from Bengal, so again we are neighbors. He started his career as a journalist with Ravivar. I started my career next room from the same publication. So we were neighbors from then.
even though he is much senior to me. Harivanshji, we wish you well. You are one of those unique people who have had the opportunity and the experience to be in two important pillars of the four pillars of a democracy: the media and parliament. So we made a speech like this in August 2 years ago when you were elected, and I would like to just repeat what I said then, that the media and parliament are two important pillars in democracy, and I wish you well, that you will do all it takes to protect these two important pillars. Good health, happiness to you and everyone else in your family. राम गोपाल यादव जी। हम पिछले दिनों से देखते रहे हैं कि हरिवंश जी में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को बड़ा बनाता है वो दो बहुत प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो वो विद्वान हैं और दूसरे बहुत विनम्र हैं। और जब विनम्र होता है व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से लोगों के आदर्श का पात्र बन जाता है। इस कुर्सी पर बैठकर भी जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाए उसके लिए सदन को चलाना बहुत आसान हो जाता है। इनकी मुझे उम्मीद है इनकी विनम्रता को, और जिस तरीके से पिछले दिनों इन्होंने हाउस चलाया है उसको देखते हुए सदन के सभी पक्षों की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा और सभी पक्षों की तरफ उनकी दृष्टि भी जाती रहेगी। प्रधानमंत्री। आदरणीय सभापति जी, मैं श्रीमान हरिवंश जी को दूसरी बार इस सदन का उपसभापति चुने जाने पर पूरे सदन और सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता की दुनिया में हरिवंश जी ने जिस तरह अपनी ईमानदार पहचान बनाई, उस वजह से मेरे मन में हमेशा उनके लिए बहुत सम्मान रहा है। मैंने महसूस किया है हरिवंश जी के लिए जो सम्मान और अपनापन मेरे मन में है, इन्हें करीब से जानने वाले लोगों के मन में है, वही अपनापन और सम्मान आज सदन के हर सदस्य के मन में भी है। ये भाव, ये आत्मीयता हरिवंश जी की अपनी कमाई हुई पूंजी है। उनकी जो कार्यशैली है, जिस तरह सदन की कार्यवाही को वो चलाते हैं, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक भी है। सदन में निष्पक्ष रूप से आपकी भूमिका लोकतंत्र को मजबूत करती है। सभापति महोदय, इस बार ये सदन अपने इतिहास में सबसे अलग और विषम परिस्थितियों में संचालित हो रहा है। कोरोना के कारण जैसी परिस्थितियां हैं, उनमें ये सदन काम करे, देश के लिए जरूरी जिम्मेदारियों को पूरा करे, ये हम सबका कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि हम सब सारी सतर्कता बरतते हुए, सारे दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। राज्यसभा के सदस्य, सभापति जी और उपसभापति जी को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में जितना सहयोग करेंगे, उतना ही समय का सही उपयोग होगा और सभी सुरक्षित भी रहेंगे। सभापति महोदय, संसद के उच्च सदन की जिस जिम्मेदारी के लिए हरिवंश जी पर हम सबने भरोसा जताया था, हरिवंश जी ने उसे हर स्तर पर
पूरा किया है। मैंने पिछली बार अपने संबोधन में कहा था, मुझे भरोसा है कि जैसे हरि सबके होते हैं वैसे ही सदन के हरि भी पक्ष विपक्ष सबके रहेंगे। सदन के हमारे हरिवंश जी इस पार और उस पार सबके ही समान रूप से रहे, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं। सभापति महोदय, हरिवंश जी ने अपने दायित्व को कितनी सफलता से पूरा किया है, ये 2 साल इसके गवाह हैं। सदन में जिस गहराई से बड़े बड़े विधेयकों पर पूरी चर्चा कराई, उतनी ही तेजी से बिल पास कराने के लिए हरिवंश जी कई घंटों तक लगातार बैठे रहे, सदन का कुशलता से संचालन करते रहे। इस दौरान देश के भविष्य को, देश की दिशा को बदलने वाले अनेकों ऐतिहासिक बिल इस सदन में पास हुए। पिछले साल ही इस सदन ने 10 साल में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी का रिकॉर्ड कायम किया है, वो भी तब जब पिछला साल लोकसभा के चुनावों का साल था। ये हर एक सदस्य के लिए गर्व की बात है कि सदन में प्रोडक्टिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी बढ़ी है। यहाँ सभी खुलकर अपनी बात रख पाए, सदन का कामकाज नहीं रुके, स्थगन न हो, इसका निरंतर प्रयास देखा गया है। इससे सदन की गरिमा भी बढ़ी है। संसद के उच्च सदन से यही अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी। लोकतंत्र की धरती बिहार से, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की धरती से, बापू के चंपारण की धरती से जब कोई लोकतंत्र का साधक आगे आकर जिम्मेदारियों को संभालता है तो ऐसा ही होता है जैसा हरिवंश जी ने करके दिखाया। सभापति महोदय, सदन उपसभापति की भूमिका के अलावा हरिवंश जी की राज्यसभा की कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे। ऐसी तमाम समितियों के अध्यक्ष के तौर पर हरिवंश जी ने समितियों के कामकाज को बेहतर बनाया है, उनकी भूमिका को प्रभावी ढंग से रेखांकित किया है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हरिवंश जी कभी बतौर पत्रकार हमारा सांसद कैसा हो, ये मुहिम चलाते रहे। सांसद बनने के बाद उन्होंने इस बात के लिए भरपूर प्रयत्न किया कि सभी सांसद अपने आचार व्यवहार से और कर्तव्यनिष्ठ बने। माननीय सभापति जी, संसद का ये उच्च सदन 250 सत्रों से आगे की यात्रा कर चुका है। ये यात्रा लोकतंत्र के तौर पर हमारी परिपक्वता का प्रमाण है। एक बार फिर से हरिवंश जी, आपको इस महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और सदन में भी स्वस्थ माहौल बनाए रखते हुए एक उच्च सदन से जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करते रहें। हरिवंश जी को मुकाबला देने वाले मनोज झा जी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लोकतंत्र की गरिमा के लिए चुनाव की ये प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमारा बिहार भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की धरती रहा है। वैशाली की उस परंपरा को, बिहार के उस गौरव को, उस आदर्श को हरिवंश जी सदन के माध्यम से और परिष्कृत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को चुनाव की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। एक बार फिर से हरिवंश जी को, सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई। धन्यवाद। श्री प्रसन्न आचार्य जी, प्रसन्न आचार्य। For the last 2 years, when he was also the deputy chairman of the House, we have seen him how with all honesty and all sincerity and with utmost impartiality,
he has been, in your absence, conducting this house very nicely, sir. And we are all impressed with his humility, his well manner, and his deep knowledge about parliamentary procedures. As everybody knows, he throughout the life, as Honorable Prime Minister was mentioning, he spent his entire life in journalism. And as usually journalists, they look upon things from different angles. So he being a very reputed journalist all his life, usually we'll hope that when he will be conducting the house, his eyes will be in the all corner of the house, and all members of the house, irrespective of which party he belongs, either a big party, a major party, or a small party, sir. With this, sir, I once again compliment the Honorable Deputy Chairman. Thank you, sir. Sir, let me first at the outset congratulate Mr. Harivansh ji. He is not new to the House, not to the members, nor is new to us. He has won our hearts. He has won the hearts of the House. So congratulations again. Sir, with these words, one thing I will say, his very valued rival, Mr. Manoj ji, it is very nice of him that he had agreed to only a voice vote, so that instead of really pressing all this. Because very magnanimously said, he has the number, whether the numbers is important or not in a democracy, he has a number, so we will end the attack there. So both of them are not only good friends, erudite members, but they have been socialists. Sir, since this is a Hindi day, I am only quoting you now. Sir, I am one of those protagonists. I have been a votary of Hindi right from the school days, which you know it very well, sir. And we have taken on our shoulders of the Angrezi Hatao movements for Hindi. But having come here, as you are a chairman of the Rashtra Bhasha Committee, I have said there, I am again raising that here, so that is very important, both for Harivansh ji and also. We want Hindi to be spoken here, not Sanskrit to be repeated here. So that we understand, we in the South, we do not know Hindi that much as what you know, but we love Hindi more than you do. So only one question is, we must be able to understand what you are trying to say, which you have said, sir, in your words, सरल हिंदी यूज करिए, दूसरा मत कीजिए, इसे हिंदुस्तानी कीजिए, so that this house becomes meaningful to most of us, at least 1/3 of this house, which would be able to understand it. Thank you, Chairman, sir. Sir, as a Deputy Chairman, he is known to this House very well, and the success and performance of the Deputy Chairman or Chairman depends upon the fair balance the respective Chairman and Deputy Chairman maintains between the Treasury benches and opposition benches, and the decisions, fair decisions, the respective Chairman and Vice Chairman, the Deputy Chairman's take in this regard. Sir, he brings the same qualities and of leadership when he occupies the position as a Deputy Chairman of Rajya Sabha. We saw, all of us saw in his last term how he did an exemplary performance in rendering the justice to the smaller parties and regional parties like us, YSR Congress Party, when he gave them a patient hearing. With this, I congratulate him once again, and I am very confident that he will do justice to this August House as Deputy Chairman of this August House. Thank you very much, sir. Thank you. Sir, he has become the custodian of this August House along with you, and his responsibility is to uphold the dignity and decorum of the House, and as well as to protect the rights of the members. Sir, this I think I want to submit at this moment, because during his earlier term, sometimes we have found very hard to draw his attention, even to raise a point of order. So I expect, sir, making use of this opportunity, I would like to say, we expect him as friendly as he is in the chamber, let him be when in the chair also, sir. Srimati Vandana Chauhan. We have had the opportunity to see and hear Harivansh ji
as an extremely eloquent and passionate member of our house since 2014 as a member, and then as an extremely able deputy chair since 2018, sir. Sir, Harivansh ji has been humility personified. He has been extremely kind and courteous in his 2 years as deputy chairman, and I'm sure those qualities will remain undeterred always. Thank you, sir. Once again, congratulate Harivansh ji on his donning the deputy chairman's position. Thank you. RCP Singh. आज ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुखद अवसर देखने को मिला कि जहाँ वोटिंग नहीं हुई, लेकिन दोनों उम्मीदवार हमारे बिहार से ही थे, एक जनता दल यू से थे, एक राष्ट्रीय जनता दल से थे। तो सब लोगों को लगा कि क्या होगा आज, और आज बहुत अच्छा हुआ। सब लोगों ने मिलकर करके हरिवंश जी को फिर से यहाँ काम करने का मौका दिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो हरिवंश जी को फिर से इस पद पर कार्य करने का मौका मिला है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो शालीन उनका जो एक व्यवहार है, उससे सब लोगों को साथ लेकर करके इस सभा का संचालन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ काम कर पाएंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। और फिर से जितने हमारे यहाँ सब साथियों ने उनको सहयोग किया इस पद पर जाने के लिए, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे सदन के सभी सहयोगियों, विपक्ष सत्ता पक्ष, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, माननीय उपसभापति महोदय जो चयनित हुए हैं हरिवंश जी, ये कभी भी मामला दो व्यक्तियों का नहीं था, कभी भी नहीं, और कभी भी मामला व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति विमर्श में मुद्दे छूट जाते हैं। दो प्रस्थापनाओं के बीच की बात थी। अच्छा हुआ कि मध्य रास्ते हमने रुक करके ये तय किया कि एक यहाँ मिलन मंदिर है जहां बातचीत हो सकती है। ये लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज है। सर MC छागला अपने शिक्षा मंत्री थे, ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने किताब लिखी, ऑटोबायोग्राफी है उनकी, रोजेज इन दिसंबर। अक्सर हम पॉलिटिक्स में कहते हैं पॉलिटिक्स एज आर्ट ऑफ पॉसिबल, वो इसको चैलेंज करते हैं। सर, पॉलिटिक्स शुड बी आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। हमने क्या किया, पॉसिबिलिटीज के चक्कर में लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को पकड़ करके राजनीति उसी के इर्द गिर्द हो रही है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और अपने तमाम साथियों का, विपक्ष सत्ता पक्ष का। और अहमद फराज कहते हैं, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझ में। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद। संजय राउत। मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से हमारे मित्र हरिवंश जी के इस उच्चतम सदन के उपसभापति पद पर चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार से आते हैं, वहां उनका सब कुछ राजनीति का पाठशाला, वहां तो सबसे बड़ी पाठशाला है बिहार में राजनीति, पत्रकारिता का भी वहां उनका काम किया। लेकिन मुझे याद है, हम बात भी करते हैं, पत्रकारिता के बहुत से महत्वपूर्ण साल हरिवंश जी ने मुंबई में भी निकाले हैं, मुंबई में भी काम किया है। और हमने देखा है कि बहुत ही शालीनता से पत्रकारिता की। दूसरी बात सर, मैंने हमेशा देखा इस व्यक्ति को, जब भी सदन के उच्च पद पर बैठे हैं, विनम्रता से काम किया, संयम से काम किया। न्याय का जो तराजू है बहुत संयमता और विनम्रता से उसने संभाला हरिवंश जी ने। मैंने उनको कभी हताश होते हुए न, सदन में चाहे कितना भी हंगामा हो, मैंने कभी उनको हताश हुआ या बहुत ही चिड़चिड़ापन आया, ये मैंने देखा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और इसीलिए मैं आज फिर एक बार उनको जो चुनाव हुआ इसलिए बधाई देता हूं। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। धन्यवाद ऑनरेबल चेयरमैन सर। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपनी तरफ से एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से श्री हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके दोबारा इस पद पर आसीन होने के लिए। और इतने वर्षों से जब वो पहले बैठे हुए थे और सीट पर बैठते हैं, हम लोगों ने हमेशा देखा कि रूल्स रेगुलेशंस उनके
टिप्स पे रहते हैं जो जिससे कि संचालन की ज़रूरत होती है। और इतना ही नहीं, सख्ती करते समय भी वो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि सख्ती सत्ता पक्ष या ऑपोजिशन में जो मेन पार्टी है उसके ऊपर किस तरह से करनी है, और जो छोटे दल हैं या जो छोटी जिनके कम नंबर हैं इस समय पार्टी के, उनके साथ में कैसी करनी है। समय खत्म होने पर भी नाना करते हुए भी वो ऐसे लोगों को, जैसे हमारे ऐसे लोगों को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहन दिया और कहा कि अपनी बात खत्म कर लीजिए, शीघ्र कर दीजिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी दी। और पूरी उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने पिछले सदन में जिस तरीके से संचालन किया, अब की बार उसी प्रकार से हम लोगों को और पूरे सदन को, जो देश का सबसे उच्च सदन है, उसकी गरिमा जो उन्होंने बढ़ाई है अपने पिछले कार्यकाल में, उसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। करीम Sir, as a experienced politician and experienced parliamentarian, I hope we can uphold the legacy and glorious dignity of this House. In democracy, there may be dissent. Earlier, Honorable Chairman told, agree to disagree is the essence of the democracy. The dissent voice also should get due consideration. I hope with the experience he had as Deputy Chairman earlier, he will uphold, he will protect the democratic right of all members. संजय सिंह। सबसे पहले मैं श्री हरिवंश जी को आम आदमी पार्टी की ओर से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में उपसभापति के रूप में चयनित किए जाने की हार्दिक बधाई देता हूं। आदरणीय हरिवंश जी ने हम सबको हमेशा एक अभिभावक के रूप में सदन में बोलने का मौका दिया। हम लोगों ने सीमाओं का अतिक्रमण किया तो रोका टोका, लेकिन मौका भी दिया। इसके लिए भी उनका हृदय से आभार। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि गांधी लोहिया जयप्रकाश के जिन विचारों को लेकर वो जीवन में आगे बढ़े हैं, लोकतंत्र के इस मंदिर में भी उस प्रकाश को हमेशा बिखेरने का काम करेंगे। श्री रामदास अठवाले। मुझे बहुत बार आपने मौका दिया है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी है। बाबा साहब के संविधान के मुताबिक ये राज्यसभा चलती है, लोकसभा चलती है, और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हरिवंश बाबू जी को मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। SR बालसुब्रमण्यम। Mr. Chairman, I felt that it will be failing in my duty if I don't welcome him and congratulate him. I think it was Derek. He said he was his neighbor. He was my neighbor too. When he moved to the seat next to me, he was immediately elected as the deputy chairman. And somebody spoke about being seeing only right and center and not on the left side. It is true. Sometimes some horses, they cannot even see the other side. They put on blinkers. Once you are on a blinkers, some horses without blinkers they won't run. Right. They will be running hither and thither. And here, once they are on the blinkers, their run will be much different and immediately they will score. The same way, Harivansh also, even though he was my neighbor, he was mild-mannered, soft-spoken. As far as a person is concerned, he is one of the best friends, as I know. And he is the fit person to be your deputy, and he will definitely follow whatever instructions are. And I expect him to be fair to all the parties, and I think he will complete his duty perfectly. I welcome him, I receive him, and on behalf of my party, I assure our support, complete support to Harivansh. Thank you. Parvinder Singh, Bundar ji. इनका जो चेहरा है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, इनका चेहरा ही बताता है कि शांत सुभाव, उच्च कोटि के विद्वान, धरती नाल जुड़े हुए, और जयप्रकाश नैन जी जिन्होंने बचपन तो लेके पहली आज़ादी की लड़ाई, दूजी की लड़ाई च अपने आखिरी श्वास त्यागे उस धरती तो आए ने, तो इस करके वो भी डेमोक्रेसी वास्ते सारी जिंदगी लड़े।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, और पार्टी ने जो रूलिंग पार्टी है उसने भी अब दूसरी बार नॉमिनेट किया है, इसलिए सब ने प्यार से इनको सहयोग दिया है। और मैं बधाई देता हूँ श्री हरिवंश प्रसाद जी को। और जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है कि सभी को प्यार से साथ लेना और सभी को देना, ये पहले भी निभाते हैं, आगे क्यों निभाएंगे। मैं दोबारा फिर बधाई देता हूँ। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। लीडर ऑफ द हाउस। महोदय, माननीय हरिवंश जी के दोबारा राज्यसभा के उपसभापति चुने जाने के इस शुभ अवसर पर सारा सदन प्रफुल्लित है। मैं उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि वो फिर से उपसभापति निर्वाचित हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है, हमारे उपसभापति जी प्रखर बुद्धिजीवी हैं, कलम के धनी हैं और कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन समय समय पर किया है और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का कोई भी पहलू आपसे अछूता नहीं रहा। हर क्षेत्र में आपने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हम सभी ने निश्चय ही अनुभव किया है कि सदन के कार्य संचालन के दौरान आपका व्यवहार सदस्यों के प्रति स्नेहपूर्ण और अत्यधिक सहयोगात्मक रहा है। आपका मार्गदर्शन खास तौर पर नए सदस्यों को संसदीय कार्यप्रणाली के विविध आयामों से प्रभावी रूप से परिचित कराएगा। सदस्य के रूप में भी आप सदन की विभिन्न समितियों में संवेदना सक्रियता से भागीदारी करते रहे हैं, सार्थक और प्रभावी योगदान देते रहे। आदरणीय हरिवंश जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों अनुकरणीय हैं और इनके गरिमामय व्यक्तित्व के संसद के उच्च सदन के सम्मान और कीर्ति में श्री वृद्धि होगा स्वाभाविक है। पुनः आपको और सदन को कोटिशः धन्यवाद देता हूं और याद दिलाता हूं कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से, कठोर परिश्रम से जिस प्रकार से पहले सदन की कार्रवाई उत्कृष्ट तरीके से आपने संचालित की, आगे भी ऐसा ही संचालन करने का प्रयास करते रहेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए फिर से एक बार बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी। I extend my heartiest congratulations to Harivansh ji on his re-election as the Deputy Chairman. His re-election stands testimony to his wide acceptability across the parties and his competence in conducting the House. I also would like to compliment Sri Manoj Jha ji for the sportive spirit he has shown, and we, the House together, we have really exhibited such a camaraderie that in a democracy there will be contest, there will be opposition and opposition, but at the end of the day we are all together. In that such a spirit, the House have elected you. I rarely see Harivansh ji without a smile on his face. That's a great quality in conducting the proceedings of the House in spite of even grave provocations at times. I once again extend my best wishes to Harivansh ji. I am sure he continues to serve this august House with the same zeal, tenacity and vigor that is worthy of stature and dignity of this House. I wish him all the success for the office he is going to adorn, and second time in a row. The Deputy Chairman may thank the members for their hearings. आदरणीय माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री जी, उनको मैं स्मरण करना चाहूँगा। नेता सदन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष समेत सभी दल के नेताओं और हर एक माननीय सांसद के प्रति आभार। सभापति जी, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब शब्द साथ छोड़ देते हैं। रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जब तुलसीदास जैसे समर्थ महाकवि ने कहा कि मानवीय इंद्रियां असमर्थ हैं, तो वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप वो समर्थ और ताकत दें कि मैं जो कहना चाहता हूं कह सकूं। मेरी कुछ ऐसी ही है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति किस तरह अपनी कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद व्यक्त करूं। आपकी मेरी प्रति उदारता, दृष्टि मेरे लिए शब्द नहीं। संसदीय जीवन से पहले आपसे परिचय नहीं रहा। ऐसे गांव और पृष्ठभूमि से आया जिसके बारे में आदरणीय चंद्रशेखर जी ने लिखा है। 51-52 में जब पहली बार विद्यार्थी के रूप में वह जेपी से मिलने उस गांव गए तो कोई रास्ता नहीं था। गांव के करीब पहुंचे तो वहां घास काट रहे एक बुजुर्ग से पूछा, जेपी का घर यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अपने टोले के आसपास से आजीवन घास काटता रहा, उधर पूरब गया ही नहीं। बमुश्किल उस गांव से जेपी का घर 3 किलोमीटर। मैं उस गंगा और घाघरा, 2 नदियों के बीच इस दियारे बाढ़ से अभिशप्त जीवन से निकला। मेरा सौभाग्य है कि मैं जयप्रकाश जी के गांव सिताब दियारा का रहने वाला हूं। वहां पीढ़ियां जन्मती थीं और गुजर जाती थीं, वहां से बाहर नहीं निकल पाती थीं। ऐसे गांव के एक अति सामान्य परिवार से बिना अंग्रेजी स्कूलों की शिक्षा के इस महान संस्था का ये महत्वपूर्ण दायित्व देने योग्य आप सबने मुझे समझा। मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ हूं। आदरणीय सभापति जी, यह बात अधूरी रहेगी अगर इस क्रम में मैं माननीय सभापति जी का उल्लेख न करूं। सर, सभी माननीय सदस्यगण से मैं बताना चाहूंगा, मेरा पहला कार्यकाल था। इस गरिमामय संस्था या सदन को चलाने की मर्यादा उंगली पकड़कर माननीय चेयरमैन साहब ने मुझे सिखाई। सदन की उच्च मर्यादा, काम का निष्पादन व स्व अनुशासन उनसे सीखा। जहां लड़खड़ाया उन्होंने आगे बढ़कर संभाला, प्रोत्साहित किया, मनोबल बढ़ाया। उनसे हमेशा सीखता हूं। एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन उनका रहा, संसदीय मर्यादा, नियम कानून के तहत श्रेष्ठ बहस यहां पर हो। उनकी कामकाज, लेखन मुझे स्तब्ध करते हैं। उनमें शब्दों की चयन की प्रतिभा अद्भुत है। मुहावरा गढ़ने, लिखने और नए विचारों के प्रति तत्परता, उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस क्षण के बाद मेरी भूमिका, जिस जगह आपने मुझे अवसर दिया, आप सदन ने अवसर दिया, हमारे अद्भुत लोक देवता गणेश जी के बताए रास्ते पर है। वेद व्यास अद्भुत ग्रंथ महाभारत की रचना कर रहे थे। महर्षि व्यास से गणेश जी का यह एग्रीमेंट हुआ, करार हुआ कि वह लिखेंगे, पर महर्षि ने कहा आप बीच में कुछ बोलेंगे नहीं। गणेश जी ने कहा ठीक है, बीच में आप रुकेंगे तो पुस्तक की रचना छोड़ दूंगा। नए संदर्भ में यह भूमिका इस सदन में है। महाभारत की जगह दोनों सदनों में देश के नए सृजन का इतिहास लिखने का गौरव इस दोनों सदन को है। रूल्स प्रोसीजर के तहत मिलकर जो बहस का समय आप निर्धारित करते हैं, माननीय चेयरमैन साहब जिसकी स्वीकृति देते हैं, आप सब उस सीमा का पालन करते हैं। लोक देवता गणेश जी की श्रृंखला में आसन को मौन होकर सुनना पड़ता है। देश दुनिया आपकी बातों से समृद्ध होती है। सदन द्वारा तय समय सीमा का जब हम अतिक्रमण करते हैं तभी आपने आसन को बोलने का दायित्व सौंपा है। बोलने के मौके से आप बचाएंगे मुझे, यह मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपसभापति हरिवंश को लगातार दूसरी बार चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी ने लगातार ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सभी सांसद अपने आचरण को अधिक नैतिक बनाएं। उन्होंने कहा कि आगे भी हमें उपसभापति के रूप में हरिवंश जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। संसद संवाद के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे।